لیکن یہ الگ परिस्थिति थी. یہ سارے سائن یہ سبھی ایک جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کی سمبھاونا کی اور اشارہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ دردناک بات یہ تھی کہ ہمارے سینک ہمارے سپاہی زمین پر پڑے تھے اور کئی گھنٹوں thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions. ایک گولی ہماری طرف سے نہیں چلی. کہا جا رہا ہے نام پوچھا گیا, دھرم پوچھا گیا, یعنی کہ ان کے پاس پوری فرصت تھی. ایک ہوتا ہے کہ آئے دندن گولی مارے اور بھاگ گئے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے پاس کہ وہ جنگ اگر جیت نہیں سکتا تو ہندوستان کو بھی جیتنے نہیں دے گا. حالیہ دنوں میں کشمیر میں ہونے والے ایک ٹیررسٹ اٹیک نے انسانیت کو لرزا دیا اور روایتی حریف پاکستان اور ہندوستان کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا. 22 اپریل کو ہونے والے اس اٹیک میں مرنے والے 26 افراد کیا لاکھوں موتوں کی وجہ بن سکتے ہیں, خصوصاً جب کہ دونوں روایتی حریف ایٹمی طاقت رکھتے ہیں. ان سیاحوں کی موت پر جب سیاست چمکائی جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ اندر کچھ اور ہی گیم چل رہی ہے. تو آئیے میرے ساتھ دیجیے اور اس واقعے کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر جنگ نہیں ہوتی تو کن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوگی, اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوگی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. 22 اپریل 2025 کو مقبوضہ کشمیر یعنی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام کے قریب ایک سیاحتی مقام پر حملہ ہوا جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے. ان میں 24 بھارتی سیاح, ایک نیپالی اور ایک مقامی گائیڈ شامل تھے, جبکہ 17 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. اس حملے کی ذمہ داری دا ریزیڈنٹس فرنٹ نامی ایک تنظیم نے لی اور ان کے مطابق ان سیاحوں کا تعلق بھارتی سیکورٹی فورسز سے تھا. اس حملے کے فوراً بعد بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا, جس کی وجہ سے اس نے کئی سخت اقدامات اٹھائے. پاکستانی ویزے کو منسوخ کر دیا گیا ہے, پاکستانی شہریوں کو ہندوستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور واحد زمینی راستہ یعنی واہگہ بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے. اور سب سے خطرناک اقدام سندھ طاس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان. سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس معاہدے کے تحت 3 دریا بیاس, ستلج اور راوی کا پانی ہندوستان کو ملے گا, جبکہ سندھ, جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کو دیا گیا ہے. اس معاہدے کے تحت بھارت ان دریاؤں پر ڈیم تو بنا سکتا ہے بجلی وغیرہ بنانے کے لیے, لیکن پانی کو مکمل روک نہیں سکتا. اب چونکہ بھارت اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر رہا ہے, یعنی اس معاہدے کا انکار کر رہا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے شاید بہت خطرناک صورتحال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے پانی کی روانی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی, کسی قسم کی مداخلت کی, تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا. اور اگر ایسے ہی صورتحال رہی اور پاکستان کا پانی روک دیا گیا تو پاکستان کو شاید شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ انہی دریاؤں کی وجہ سے پاکستان کا زرعی نظام قائم ہے. اس کے علاوہ پینے کے پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے. ظاہر ہے جب زرعی نظام پر اثر پڑے گا تو آٹومیٹیکلی ملک میں خوراک کی قیمتیں بڑھیں گی, مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور زراعت کی مد میں حاصل ہونے والا زرعی مبادلہ کم ہوگا, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت مزید معاشی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پانی کے رک جانے سے آبی حیات پر جو اثر پڑے گا وہ تو ہے ہی, لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر قدرتی طور پر آنے والے اس پانی کو ہندوستان کس طرح مکمل روک سکتا ہے. مانا کہ ہندوستان کے پاس کچھ بڑے ڈیمز ہیں کہ جن میں پانی سٹور کیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا زیادہ پانی کو مکمل روکنے کے لیے ہندوستان کے پاس ابھی اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ پانی کو روک سکے. اس کو روکنے کے لیے شاید ہندوستان کو ابھی کئی دہائیاں چاہیے ہوں گی. سندھ طاس معاہدے کے ساتھ ساتھ 1972 یعنی کہ 1972 کے شملہ معاہدے کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں امن و امان کی فضا قائم تھی. اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک اپنے بیچ کے تمام مسائل کہ جس میں کشمیر بھی شامل ہے تشدد کے بجائے ٹیبل ٹاک یعنی مذاکرات سے حل کریں گے, اور تیسرے فریق کی مداخلت کو پسند نہیں کیا جائے گا. اور ایل او سی یعنی لائن آف کنٹرول کو دونوں ممالک نے احترام دینے کا وعدہ کیا تھا. دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ کسی بھی قسم کی جارحیت یا طاقت کے استعمال سے حتی المقدور بچا جائے گا. اگر اس معاہدے کو ختم کیا جائے تو اس کا امپیکٹ ایسا ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان بنیادی امن و امان قائم کرنے والا فریم ورک ہی نہیں رہے گا کہ جس کی وجہ سے بات چیت کی جا سکتی تھی, کیونکہ اس معاہدے میں دونوں ممالک
एक दूसरे का एहतराम करने के पाबंद थे, और जब ये मुआहिदा ही खत्म हो जाएगा तो किसी भी किस्म की शदीद कार्रवाई हो सकती है, और इससे पैदा होने वाले नतीजे शायद दोनों ममालिक के लिए अच्छे साबित ना हों। दहशतगर्दी के इस वाक़े को इंडियन मीडिया जज्बाती अंदाज से शायद कुछ और ही रंग दे रहा है, जिसमें मजहब को बीच में लाया जा रहा है और इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि हिंदुओं की आइडेंटिटी पूछकर उन्हें कत्ल किया गया। मैं एज ए मुस्लिम ये कह रहा हूं कि इस तरह के वाकयात जिसमें बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, बम धमाकों में, शूटिंग से या जिस भी तरीके से, और उनमें मरने वाले चाहे जिस मजहब से भी तल्लुक रखते हों, ये अमल एक दहशतगर्दी का अमल है और इस्लाम का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। मोदी हुकूमत को सभी लोग जानते हैं, किसी से ढपकी छुपकी बात नहीं है कि उसने हमेशा मजहब की बुनियाद पर वोट बिटोरे हैं, और जब अपनी पोजीशन कमजोर होती नजर आती है तो हिंदू तबके को मजलूम दिखाकर, जज्बाती और मजहबी टच दिखाकर बाल अपने कोर्ट में कर लेते हैं। नाज़ी जर्मनी में हिटलर का एक मिनिस्टर था जिसका बाकायदा काम ही प्रोपेगेंडा करना था। उस मिनिस्टर के मुताबिक एक गलत खबर को किसी शख्स तक इतने सोर्सेज से पहुंचाओ कि वो शख्स उस गलत को सही मानने पर मजबूर हो जाए। साइकोलॉजिकली तौर पर भी जब एक इंसान पर कोई खबर, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, मुख्तलिफ ज़राए से उस तक पहुंचती है तो वो सोचने लगता है कि इतने ज़राए किस तरह एक झूठ पर इकट्ठे हो सकते हैं, तो वो उस खबर को सही मानकर उसके मुताबिक रिएक्ट करता है। ये ऐन मुमकिन है कि ये हमला एक साजिश हो ताकि अवाम को साइकोलॉजिकली तौर पर मैनिपुलेट किया जा सके। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। इंडियन यूट्यूब चैनल द शाम शर्मा शो के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की इस बयान के कि वो हिंदुओं से अलग हैं, उसकी बुनियाद बनाकर इस हमले को जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा। Thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इसमें गलत ही क्या है? हम दो अलग नेशंस हैं, अलग मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, तो इसको मानने और बताने से ये कहां साबित होता है कि दूसरी आइडियोलॉजी वालों को, दूसरे मजहब वालों को मारा जा सकता है? उस चैनल के मुताबिक जो हिंदू मुसलमानों के हक में बात कर रहे हैं वो भी गलती पर हैं। अरे भाई, होश के नाखन लो। इस वक्त मोदी हुकूमत बहुत से मसाइल का शिकार है, जिसमें महंगाई हो गई, बेरोजगारी, किसानों की नाराजगी और अकलियतों से गलत सलूक। ये मोदी हुकूमत को बड़ा परेशान कर रहा है, और इस तरह का वाकया होना कि जिसमें जज्बाती एंगल निकल कर सामने आए, मजहबी एंगल निकल कर सामने आए, तो ये वादे तौर पर मोदी हुकूमत के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। यानी मोदी हुकूमत कौम परस्ती के जज्बात को भड़काकर अपना उलू सीधा कर सकती है। क्या आप पुलवामा अटैक और पार्लियामेंट हमले के भूल चुके हैं? 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला होता है जिसमें 9 अफराद हलाक होते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि तमाम बड़े सियासी लीडर जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो सब के सब बच जाते हैं। इसके अलावा पुलवामा में शायद 2019 में एक भारतीय फौजी काफिले पर हमला होता है जिसमें तकरीबन 40 भारतीय फौजी मारे जाते हैं। इन दो वाकयात के बाद हस्बे मामूल भारत जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पर इल्जाम डाल देता है, जिसकी वजह से एक कौम परस्ती की एक फजा सी कायम हो जाती है जो कि नेचुरल है, और वक्त हुकूमत जो कमजोर पड़ रही होती है उन वाकयात की बुनियाद पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम और मजबूत कर लेती है। क्या इस वाकये के पीछे कोई सियासी चाल होना नामुमकिन है? अगर मोदी हुकूमत दयानतदार होती तो इस वाकये के होते ही इतने सख्त इकदाम ना उठाती, क्योंकि किसी किस्म की तहकीक के बगैर बस मुखालिफ पर इल्जाम लगा दो, उसके खिलाफ इकदाम उठाओ, अपनी अवाम में कौम परस्ती के जज्बात का एंगल उठाकर अपने तमाम करतूत और गलत पॉलिसियों को छुपा लो। यही तो करती हैं मोदी जैसी जमहूरी हुकूमतें। एक सियाती इलाके में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह का हमला कि जिसमें दहशतगर्दों ने तसल्ली से नाम पूछा, उनकी आइडेंटिटीज कन्फर्म की, उन्हें गोली मारी। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि ये कैसे मुमकिन है।
एक गोली हमारी तरफ से नहीं चली। कहा जा रहा है नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, यानी कि उनके पास पूरी फुर्सत थी। एक होता है कि आए दंदन दंदन गोली मारे और भाग गए, एक ये कि आराम से वो आपसे धर्म पूछ रहे हैं, किसी का पैंट उतार रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि जाके मोदी को बता देना। उनके पास पूरा टाइम है, वो ये कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है ये तो वक्त गुजारने के साथ साथ हकीकत सामने आते ही जाएंगे। इस वक्त ये कहना है कि ये हमला फलां ने कराया है, उसके पीछे इनका मकसद ये था, ये शायद कबल वक्त होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई जुर्म होता है या कोई वाकया होता है तो ये देखा जाता है कि इस वाकये या जुर्म से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंच रहा है, तो उस शख्स को ही सबसे पहले शक की निगाह से देखा जाता है। अब अगर इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा मोदी हुकूमत को पहुंच रहा है तो मोदी हुकूमत ने अपने आप को शक से बचाने के लिए बगैर किसी तहकीक के, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया और इस बात को इतनी तशहीर दी कि जब ये लोगों तक लातादाद ज़राए के जरिए पहुंचेगी तो साइकोलॉजिकली के तौर पर इस खबर को ही सच माना जाएगा। हालात बहरहाल कशीदा हैं, अल्लाह करे ऐसा कोई मामला ना हो कि जिससे जंग की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि ये दोनों ममालिक के लिए सही नहीं होगा और जो लोग जंग कराने का बहस बनते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस, आम आवाम का और आर्मी सोल्जर्स का होता है और उस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग छिड़ जाए तो इस जंग का फातेह कौन रहेगा? चाइना को गैर जानबदार मानकर, क्योंकि इस जंग से डायरेक्ट चाइना को भी सब बहुत कुछ हासिल हो सकता है क्योंकि वो भी भारत से एक बॉर्डर शेयर करता है। अगर ये जंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होती है तो इसका फैसला क्या होगा? देखिए, किसी भी मुल्क की जंग जीतने का इन्हिसार कई अवामिल पर होता है, जैसा कि फौजी ताकत, फौज की तादाद, उसके पास असला कितना है, फौज का अपने मुल्क में मोराल कैसा है, क्या उस फौज के पीछे उस मुल्क की अवाम खड़ी होगी या नहीं। इसके अलावा इस मुल्क के बैन अवी सतह पर ताल्लुकात कैसे हैं और कौन से ममालिक से हैं, मतलब बहुत से अवामिल हैं कि जिनको देखना पड़ता है और इन अवामिल के अदाद शुमार के हिसाब से एक प्रिडिक्शन की जा सकती है। लेकिन जाहिर है बाज़ का नतीजा प्रिडिक्शन के बरअक्स भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा मुल्क होने की वजह से हिंदुस्तान की फौज की तादाद ज्यादा है, उसके पास जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा टैंक हैं, एयरफोर्स के पास तैयारे ज्यादा हैं, नेवी के पास सबमरीन्स और दूसरे असला ज्यादा हैं। इसके अलावा इसी तरह न्यूक्लियर हथियार भी पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हैं। तो मिलिट्री ताकत के हिसाब से हिंदुस्तान हर लिहाज से पाकिस्तान से बरतर है। इसके अलावा हिंदुस्तान की रेपुटेशन पाकिस्तान की निस्बत बैन अवी तौर पर ज्यादा बेहतर है। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान को अमेरिका, रूस, फ्रांस और इसके अलावा दीगर कई ममालिक से बेहतरीन और वसी पैमाने पर इमदाद की जा सकती है, जबकि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान बैन अवी तौर पर कुछ अच्छी रेपुटेशन यानी साख नहीं रखता और पाकिस्तान के पास महदूद बैन अवी सहारे हैं जो कि उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे चीन और तुर्की वगैरह। अगर इन्हें हक़ीक़त को नजर में रख कर देखा जाए तो हिंदुस्तान इस हालत में है कि वो एक लंबी जंग बर्दाश्त कर सके, क्योंकि उसके पास वसाइल ज्यादा हैं तो वो एक रवायती लंबी जंग कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान इस हालत में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को एटमी ताकत होने का एडवांटेज हासिल है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कोई भी कदम उठाने से पहले जाहिर सोचेगा, क्योंकि जब कोई शख्स अपने आप को हारता और मरता देखता है तो वो अपना सबसे मौलिक और कारी हथियार जवार तब यूज करता है। तो ये एक एडवांटेज है पाकिस्तान के पास कि वो जंग अगर जीत नहीं सकता तो हिंदुस्तान को भी जीतने नहीं देगा। लेकिन अगर रवायती जंग की बात की जाए तो इसमें फौज का अपने मुल्क में भरोसा, उसकी रेपुटेशन बहुत मायने रखते हैं और ये एक तल्ख हकीकत है। इस लिहाज से पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी मिलिट्री या जनरल्स कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है। तादाद के लिहाज से, असला के लिहाज से हिंदुस्तान की निस्बत पाकिस्तान हल्की पोजीशन में है, लेकिन पाकिस्तान के पास बेहतरीन मिसाइल सिस्टम मौजूद है। एक जज्बाती फैसले से हटकर अगर हिंदुस्तान समझदारी से काम लेता है तो उसे हमला करने से पहले काफी सोचो बचार करनी पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता जंग हो गई तो जहां तक मैं समझता हूं कि रवायती जंग में हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान बेहतरीन टक्कर दे सकता है, जबकि न्यूक्लियर वार में फातेह कोई नहीं होगा, बल्कि ये एक इंसानियत के लिए तबाहकुन साबित होगी। और ज़ाहिर है न्यूक्लियर वार से बचाने के लिए दूसरे ममालिक भी पूरी कोशिश करेंगे कि दो एटमी पावर्स आपस में जंग से दूर रहें, क्योंकि दो एटमी ताकतों के आपस में जंग पूरी दुनिया पर असर डालेगी, एक इंतहाई मनफी असर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
تو لائک اور شیئر کر دیجیے.